In the past, many of us just attended the church. We learned to be good spectators. God expects you to grow. Many of us newly connected with Facebook. How many of us grown in Jesus Christ? We need to come out of the home theater and be seated in the church. Loving Heavenly Father, thank you for this beautiful morning. स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद। Thank you for your anointed word. और आपके अभिषेक वचनों के लिए धन्यवाद। Bless our hearts, O Father. हमारे हृदयों को तू आशीषित कर। I pray for the each and every hearers of this word. और आज के हर एक वचनों के लिए हम दुआ करते हैं Bless प्रभु। their ears and their hearts. सुनने वाले हर एक कानों को और हृदयों को तू आशीष कर। Let your word accomplish what you want to do. और आपका वचन संपूर्ण हो सके जो आपकी योजना में है। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Okay, during this lockdown time that we all become good watchers. और इस लॉकडाउन के समय हम लोग अच्छे देखने वाले बन गए। We learn to be good spectators. और हम लोग अच्छा ध्यान से देखना हमने शुरू कर दिया We है। learn how to sit in front of the TV for long hours. और हम लोगों ने ये सीख लिया है कि टीवी के सामने कैसे घंटों तक हम बैठ सकते We हैं। learn to listen to the preaching through our cell phones. और हम लोगों ने सीख लिया है कि हमारे प्रचारों को कैसे हम अपने मोबाइल के द्वारा देख सकते We हैं। learned how to operate Zoom meetings. और हम लोग सीख चुके हैं जूम मीटिंग के द्वारा हम कैसे जुड़ सकते Many हैं। of us newly connected with Facebook. और कुछ लोग पहली बार फेसबुक के द्वारा जुड़े हुए हैं। Thank God for all the technologies. और परमेश्वर का धन्यवाद हर एक उपकरणों का। So now, within few weeks, लेकिन कुछ समय बाद we are going to come together and start worshiping the Lord. फिर से हम आकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। So we have to change our gears. और हम लोगों को अपने जीवन में ये परिवर्तन लाना है। We need to come out of the home theater and be seated in the church. और हम लोगों अपने घर के होम थिएटर से बाहर आकर कलीसिया में आराधना की उस तरीके को अपनाना है। So we need to prepare ourselves. और हमें अपने आप को तैयार करना है। Within few weeks, I said, और केवल कुछ हफ्तों में ही when the church meet again, जैसे कलीसिया फिर से मिलने जा रही are है, you prepared? क्या आप तैयार Is हैं? your heart prepared to attend the service or participate in the service? क्या आपका हृदय तैयार है कलीसिया की संगति और उसकी आराधना में जुड़ने के लिए? In the past, many of us just attended the church. और पिछले दिनों में शायद हम लोग केवल कलीसिया में आकर बैठे हुए, Seldom we took part in that. और काफी उसमें ज्यादा भाग ना लिया हो। So we need to learn something new now. और हमें कुछ नया आज ये सीखना है। God has given us the break परमेश्वर ने हमें एक समय रुका हुआ दिया to wait upon the Lord, कि हम परमेश्वर में इंतजार to करें examine our hearts. कि अपने हृदयों को परख सके। How much I participate in the church service. कितना अधिक हम कलीसिया के संगतियों में भाग ले पाएं। Our understanding of the church. और हमारे जो विचार कलीसिया के प्रति हैं, We need to learn something new. हमें कुछ नया सीखना है। Usually when we say that I go to church, और हमेशा जैसे हम कहते हैं कि जब कलीसिया हम गए, we refer to the building. और हम लोग आकर वहां के बिल्डिंग को कहते हैं। No, buildings are there now, और बिल्डिंग अभी भी है, but churches are not there. लेकिन कलीसिया वहां नहीं है।
We have the same building everywhere, और हर एक बिल्डिंग अभी भी है, but church is not there. लेकिन कलीसियाएं वहां नहीं है। So when we think of a church, we should not think about building. हम लोग जब कलीसिया के बारे में सोचते हैं वो कोई इमारत नहीं है, Even we should not think about the denomination. या कोई डिनोमिनेशन के बारे में हम सोच रहे हैं करके नहीं। We should stop speaking like I am a AG believer or Church of God believer, mentioning the names of the denominations. या हम लोग जब कहें मैं आकर इस कलीसिया का विश्वासी हूं या इस संगति का विश्वासी हूं, कहना नहीं। We are the members of the local church. हम सभी आकर इन कलीसियाओं के संगति हैं। Next 3 weeks, I'm going to talk about this same topic about church. और आने वाले 3 दिनों में आकर हम कलीसिया की मुख्यता पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं। What is church? कलीसिया क्या है? What is my responsibility towards the church? और मेरी जिम्मेदारी क्या है कलीसिया के प्रति? First, let's come to Gospel of Matthew, chapter 16, verse 18. मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 8वें वचन की ओर हम आए। Let's begin from verse 13. 13वें आयत से हम लोग देखें। Jesus asked his disciples, यीशु ने अपने चेलों से ये पूछा, who do people say the Son of Man is? लोग क्या कहते हैं मनुष्य के पुत्र को? The disciples replied, और चेलों ने ये उत्तर दिया, some say you are John the Baptist. कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, Others say you are Elijah. और कुछ कहते हैं कि तू भविष्यवक्ता एलीजा है, Still others say Jeremiah, और कुछ कहते हैं तू भविष्यवक्ता यिर्मयाह है, or one of the prophets. या भविष्यवक्ताओं में से एक। That's what disciples understand. That's what disciples heard from the people. और यही चेलों ने लोगों से सुना। So we know Jesus is not John the Baptist, he's not Elijah, he's not Jeremiah, he's not just one of the prophets. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या एलीजा या जरमाया या भविष्यवक्ताओं में से एक है, ऐसा नहीं। Okay, Peter, it's okay. But what about you? लेकिन ठीक है पत्रस, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? Who do you say I am? तुम क्या कहते हो मेरे बारे में? Peter answered, और पत्रस ने ये उत्तर दिया, you are the Christ, आप मसीह हैं, the Son of the living God. परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पुत्र। Jesus replied, और यीशु ने ये उत्तर दिया, blessed are you, Simon, son of Jonah. और तू धन्य है पत्रस, सिमोन के पुत्र, For this was not revealed to you by man, ये मनुष्य के द्वारा तुझ में नहीं प्रकट हुआ, but by my Father in heaven. लेकिन मेरे पिता जो स्वर्ग में है। And I tell you that you are Peter, और मैं कहता हूं कि तू पत्रस है, and on this rock I will build my church, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, and the gates of Hades will not overcome it. और नरक के द्वार उस पे कभी प्रबल ना होंगे। The right translation of this passages, और सही अनुवाद इन वचनों का क्या है? especially verse 18, 18वें वचन में जब हम देखते हैं, upon your confession, Peter, I will build my church. और तेरे इस अंगीकार पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। The पत्रस, confession which you made, जो अंगीकार तूने किया है, it's not by your own. ये तेरे द्वारा नहीं, It was revealed by my Father to you. और ये मेरे पिता के द्वारा तुझ में प्रकट You हुई made है। the confession that I am Christ, I am the Son of the living God. और तूने ये स्वीकार किया है कि मैं मसीह हूँ, परमेश्वर का पुत्र। On this confession, और इस अंगीकार पर I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Dear saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, God has called us from the darkness to the light. परमेश्वर ने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर We आया। understood the revelation of God. हम परमेश्वर के
भविष्यवाणियों को जानते हैं। We don't believe that Jesus is the John the Baptist. हम जानते हैं कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला We नहीं। don't make a confession Jesus is one of the prophets. हम ऐसा अंगीकार नहीं करते कि यीशु मसीह कोई एक भविष्यवक्ता है। Our confession is Jesus is the anointed one, the Messiah, the Christ. और हमारा ये स्वीकार या अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मसीहा परमेश्वर का पुत्र We है। worship the Son of the living God. हम जीवित परमेश्वर के पुत्र की आराधना करते We know हैं from the scripture. और हम वचनों में से ये He's समझते not हैं, just one of the prophets. ये भविष्यवक्ताओं में से एक नहीं। We know he is the Son of the living God. हम जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र Now है। Jesus is saying now अब यीशु ये कहते हैं to you and me, आपसे और मुझसे, upon this confession, इस अंगीकार पर I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। I hope you understand. और मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे Whatever हैं, was promised to Peter, जो कुछ भी पतरस से वादा किया it गया is promised to us even. वो हमसे भी वादा किया गया So God है is going to build this church upon our confession. और परमेश्वर अपने इस मंदिर को स्थापित करेगा हमारे अंगीकार He's going करने to build पे। a church upon our faith. वो हमारे विश्वास पे बनाने वाली कलीसिया है। Faith is Jesus Christ is the Savior, the Christ and the Son of the living God. और वो विश्वास ये है कि यीशु मसीह स्वर्गीय पिता परमेश्वर का पवित्र पुत्र है So with us, और हमसे through us, और हमारे by द्वारा using us, और हमें इस्तेमाल करते and हुए in us, और हम में God is going to build the church. परमेश्वर उस कलीसिया को स्थापित करता है। How important you are. कितने मुख्य हैं आप, He wants to build the church upon your confession. और वो अपनी कलीसिया को आपके स्वीकार करने पर स्थापित करता And है your faith in Jesus. और आपका विश्वास मसीह यीशु में। Amen. आमीन। Every believer is a member of the body of Christ. हर एक विश्वासी परमेश्वर का अंग या सदस्य है Christ is the head of his body. और मसीह उस शरीर का सर है His body has many members, और उसके शरीर के काफी अंग हैं each of which is very essential. और जो हर एक आकर मुख्य है। So Paul is exhorting और पौलुस ये बताता है each and every member of the body of Jesus Christ यीशु मसीह के शरीर का हर एक अंग must grow up वो बढ़ता रहे and work together. और एक मन होकर कार्य How many करे। of us realize this fact? और हम में से कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं। I go to church हम कलीसिया जाते हैं so that I must grow. कि मैं उसमें बढ़ता रहूं। I go to church मैं कलीसिया में जाता हूं to work with other believers. कि दूसरी संगतियों के साथ हम बढ़े। Many of us, we always think, when we go to church, just to worship Him. हम में से कई सोचते हैं कलीसिया जाने का केवल हमें आराधना करना है, इतना ही। We sing some songs, हम कुछ गीतों को गाते हैं we enjoy that song, और उन गीतों से आनंदित होते हैं we appreciate the musicians, और हमें वाद्यनों को बचाने वालों की तारीफ करते हैं sometimes criticize the singers, या गीत गायक को कई बार हम लोग कमियां खोजते हैं make comment, I can sing better than my pastor, और कई बार ऐसा कहते हैं कि मैं तो अपने पासवान से अच्छा गा सकता हूं but he is not giving an opportunity. शायद, लेकिन वो मुझे कोई मौका नहीं देते। These are all okay. ये सारी बात ठीक है, But if we understand the scripture लेकिन यदि आप वचनों को समझते हैं as a body of Christ, परमेश्वर के एक अंग होने के God कारण expects you to grow. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें बढ़ें। How many of us grown in Jesus Christ? हम में से कितने लोग मसीह में बढ़े हैं? Is there any fruit that you have grown inside the church? क्या कोई फल है जो आप कह सकते हैं कि मैं कलीसिया में इसमें बढ़ा हूं? Even you have not changed your pew.
और आप में से कुछ लोग अपनी छोटी छोटी कार्यों में भी नहीं बदले। You are in the last bench. आप पीछे वाली कुर्सी में बैठते Still हैं, you are in the last bench. अभी भी आप पीछे ही हैं। 20 years. 20 साल हो गए, You did not make any effort to come even, one step forward. आपने एक कोशिश भी नहीं करी कि थोड़ा आगे हम बढ़े। You have never talked to anyone for the last 20 years. 20 साल से हमने किसी से बात नहीं किया कलीसिया Still में, you remain the same. और अब तक वैसे ही You है। never blessed anyone. किसी को आशीष नहीं किया, Still you remain the same. अभी भी वैसे ही हैं। We need to grow. हमें बढ़ना है, Grow in the love of our Lord Jesus Christ. हमें मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ना है। Ephesians chapter 4 verse 15 and 16. इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय के 15 और 16वें आयत में Paul says we ought to grow up in every way into him who is the head. और पौलुस कहता है कि हमें हर एक कार्य में बढ़ना है जो हम उसमें हैं, From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped. और जिसमें हम आकर एक शरीर में उसके अंगों में जुड़े हुए हैं जो एक साथ है। When each part is working properly, जब हर एक अंग सही तरीके से कार्य कर makes रहा the है, body grow वो शरीर की बढ़ोतरी में सहायता करता है, so that it builds itself up in love. और वो अपने आप ही प्रेम में बढ़ता है। How we can grow? कैसे हम बढ़ सकते How हैं? the church we can grow? कैसे कलीसिया बढ़ सकती है? Our growth is always हमारी बढ़ोतरी हमेशा calculated in numbers. गिनतियों में आकर देखी जाती है। Big church. बड़ी कलीसिया है, The church has grown big. कलीसिया बढ़ रही है। But here Paul is not talking about numbers. यहाँ पौलुस आकर गिनतियों को नहीं कह रहा Paul is कलीसिया में। talking about the spiritual maturity. पौलुस आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में यहाँ कह रहा है। Paul is talking about joined, knit together as one body of Jesus Christ. पौलुस कह रहा है कि हम लोग उस शरीर में जुड़कर एक अंग बन सके। So as a believer, विश्वासी होने के I कारण should take every effort हमें पूरी कोशिश मेहनत करनी to है join with the other believers कि हमें दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़कर to be equipped in Jesus कि Christ. यीशु में हम बढ़ते रहें, That's how we grow. और उसी तरीके से हम बढ़ते हैं। Amen. आमीन। Some of us, we have high positions. हम में से आकर शायद कुछ ऊंचे पदों में कार्य करते हो, Some of us are very judgmental. या दूसरे कोई काफी न्याय करने वाले Some हो। of us pride. कई लोगों के अंदर ये गर्व या घमंड, Some of us have a high status. और कुछ लोगों में आकर बहुत ऊंचे हैं ये मानना। If any one of this stops you यदि इनमें से कुछ आपको ये रोक रहा है to join with the other believers in the church, कि कलीसिया के दूसरे विश्वासियों के साथ I जुड़ने think you में, are wasting your time. मुझे लगता है कि आप अपने समय व्यर्थ कर रहे If you हैं। believe that, I go to the church just to listen to few songs, I sing with them, I hear the word and come. मैं कलीसिया इसलिए जाता हूँ या जाती हूँ कि कुछ गीतों को सुनूं या गाऊं और वचनों को सुनकर आ जाऊं। You lost the purpose of the church and purpose of God in your life. आप परमेश्वर के मकसद को और कलीसिया के मकसद को अपने जीवन में खो चुके Church is हैं। going to open again. कलीसिया फिर से खुलने जा So रहा what is है your preparation? कि आपकी तैयारी क्या है? Are you going to come and क्या- remain in the same way? क्या आप आकर उसी तरीके से रहना चाहते हैं, Or are you going to take an initiative to join with others and knit together as a one body of Jesus Christ? या हम कोशिश कर रहे हैं, तैयार होने के लिए तैयार हैं कि दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़कर हम एक में बढ़े। Church, change your group. और कलीसिया अपनी संगतियों में बदलिए, Church, change your pews. और अपनी रुकावटों को बदलिए। Change your friends in the church. कलीसिया में अपने मित्रों को बदलिए। You need to help one another. आपको एक दूसरे की
सहायता करनी है, That's how we are going to be equipped. और इसी तरीके से हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। You need me, I need you. आपको हमारी आवश्यकता और हमें आपकी आवश्यकता है, Everyone has a different gifts, और हर एक को अलग अलग भेंट दिए गए हैं, abilities, talents. और मुख्यता और जरूरत दिया गया Believe है। that you can be a blessing to someone. विश्वास कीजिए कि आप किसी के लिए आशीषित Feed your होंगे, mind. और अपने दिमाग पर I'm not ये going to बातें remain the दीजिए। same. मैं हमेशा anymore. के तरह रहना नहीं चाह रहा, I'm going to meet a new person. मैं एक नए व्यक्ति से मुलाकात करूंगा, I'm going to talk to them. और मैं उनसे बात करूंगा, I will be attached to the church. और मैं उस कलीसिया के द्वारा जुड़ूंगा, I will participate in church. और मैं आकर कलीसिया के कार्यों में भाग I will लूंगा। not be a mere spectator anymore. मैं केवल आकर देखने वाला ऐसा ना रहूं। Amen. आमीन। So what decision we make और क्या निर्णय हम लेते हैं? in future when I go to church? यदि भविष्य में हम कलीसिया जाएं, I will join with other believers. मैं दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ूं। Okay. Second point. दूसरा बिंदु, Ephesians 2:20-22. और इफिसियों के दूसरे अध्याय के 2 से लेकर 20 से लेकर 22 तक। Paul says, you are built on the foundation of the apostles and prophets. और पौलुस ये कहता है, तुम लोग प्रेरितों की उपदेशनाओं में बने हो, Christ Jesus himself being the cornerstone, और मसीह यीशु ही हमारा नींव है, in whom the whole structure be joined together, और जिसमें ये सारा अंग स्थापित हो, grows into a holy temple in the Lord. जो एक पवित्र मंदिर में परमेश्वर में बढ़ सके। In him you are also being built together into a dwelling place for God by the Holy Ghost. और जिसमें तुम बढ़ते हो और उसमें पवित्र आत्मा वास करता है। Amen. आमीन। We all have some weaknesses. और हम सभी में कमजोरियां या कमियां रहती हैं। Some of us are introvert, कुछ लोगों के अंदरूनी कमियां हैं, shy to speak with others. और उनको आकर दूसरों से बात करने में आकर शर्म आती हो। Some of us have inferiority complex. और कुछ लोग में आकर दूसरों के सामने आने से We घबराहट होती है, always feel that, I will make a mistake. और हमें हमेशा ये रहता है मन में I ख्याल can't कोई communicate गलती ना कर दे, properly. शायद मैं उनसे ठीक से बात ना कर That पाऊं, brother knows better than me. वो भाई मुझसे ज्यादा That जानता है, sister knows better than वो me. बहन मुझसे ज्यादा जानती है, He is very popular. वो आकर बहुत ही योग्य है, She is very popular. और वो बहुत योग्य We है, are all close to pastor. वो लोग पासवान के बहुत करीब उठना Leave बैठना है। everything. हम लोग ऐसा सोच के Be strengthened in the Lord. परमेश्वर में हम बल पाएं। What does it say? यहाँ क्या कहता है? You need to build yourself आपको अपने आप को ये बनाना है on the teaching of the apostles. प्रेरितों की उपदेशनाओं पर। We will come a little later. हम उसमें वापस आएंगे। Remember, याद रखिए, Christ himself being the cornerstone, मसीह हमारा नींव है, in whom the whole structure being joined together, और जिसमें आकर ये पूरा मंदिर बना है, grows into a holy temple. जो एक पवित्र मंदिर में बढ़ता है। Remember, God has placed you. और ये याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको रखा है, God has brought you here. परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है, You are his body. और आप उसके अंग है। Maybe when we come to this analogy, और जब हम लोग इन बातों पे अध्ययन करते हैं, we are like a stone हम एक पत्थर के in the समान hands हैं, of the Lord. परमेश्वर के हाथ में दिए He गए, is the cornerstone, the foundation. और वही हमारे इस नींव है करके हम देखते So हैं। he is going to place you in a particular place in the temple. और उस मंदिर के एक सही जगह पर वो आपको You रखता are है, so important in that place. और उस जगह पर आप बहुत मुख्य हैं। You are not in the same size. आप उसी
उसी उतने ही बड़े You नहीं are not in the same shape. और उसी आकार में But नहीं है, Christ wants you to be there. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वहां There रहें। will be another stone by your side. और शायद आपके बगल में एक और पत्थर There हो, will be another stone on the top. और शायद आपके ऊपर एक और पत्थर हो, Everything should be joined. लेकिन हर एक को It is जुड़ना the है। work of the Holy Ghost. और ये पवित्र आत्मा का कार्य Remember है, that. लेकिन याद God रखिए, is going to use you. और परमेश्वर ये आपको इस्तेमाल God करना has चाहता है, positioned you. और परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। The foundation is Jesus Christ. और जो नींव है वो यीशु You मसीह are है, placed upon that foundation. और आपको उस नींव के ऊपर रखा गया है। Then when we are all come together, being built together, जब हम एक साथ आते हैं और एक साथ जोड़े जाते हैं या it बनाए becomes जाते a हैं, dwelling place of God. और वो परमेश्वर का मंडलाने का जगह बनता है, स्थान Amen. बनता है। आमीन। How many of you want to experience the presence of the Lord in the church? और आप में से कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में महसूस करना चाहते हैं? If you are knit together, यदि हम एक साथ if you are जुड़े all गए, join your hearts together, यदि हम अपने हृदय को जोड़ते if हैं you एक all साथ, love one another, यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, it says that ये कहता है you become a dwelling place आप उसके मंडलाने का स्थान for बनते हैं God by the Holy Ghost. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen. आमीन। So you pray that before you come to the church this Oh. time. और आप प्रार्थना कीजिए इस समय जब आप कलीसिया में आते हैं, Holy Spirit, help me. पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, Place me in a particular place मुझे एक सही जगह पर तू स्थान कर, according to your will. तेरी योजना के अनुसार। Stone cannot speak. पत्थर नहीं कह He cannot सकता, tell वो Holy नहीं Spirit, कह सकता कि पवित्र आत्मा से I am a beautiful stone. मैं एक खूबसूरत पत्थर हूँ, Put me on the pulpit. मुझे आकर बलिदान के उसके ऊपर रख। If you have that pride, God may put you on the doorstep. शायद परमेश्वर की योजना हो कि आप द्वार के सामने रखा जाए। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद हो, You serve a purpose there. वहां पर आप कुछ योजनाओं से करते हैं कार्य। Hallelujah. हालेलुया। Everybody comes and steps on you. और हर कोई आप पर पैर रखता You है, lift someone inside the church. आप किसी को उठाकर कलीसिया में लाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It should be our attitude. ये हमारा स्वभाव होना Pray to चाहिए। God. परमेश्वर से प्रार्थना Use me, करें, Lord. मुझे इस्तेमाल कीजिए प्रभु, Help me, Lord. मुझे सहायता कीजिए प्रभु, Help me to grow in the church. मुझे सहायता कीजिए कि मैं कलीसिया में बढ़ूं, I need to grow in this holy temple. मुझे इस मंदिर में बढ़ना है, Build me, Lord. मुझे आकर तू बना सके। Amen. How आमीन। God builds? परमेश्वर कैसे बनाता है? Not with one stone. एक पत्थर से नहीं, The every stone which comes here. जितना भी पत्थर यहाँ आता है, That's how the church is built. उसी प्रकार से कलीसिया जोड़ी जाती So है। you can see it. The church becomes the dwelling place of God. और आप जान सकते हैं कि उसी द्वारा कलीसिया परमेश्वर का मंडलाने वाला स्थान बनता So when है। you think of this, man, जब हम इस बातों को सोचते हैं, maybe this church has been there for 26 years. शायद ये कलीसिया आकर 25-26 सालों से यहाँ है। Is the church built क्या कलीसिया बनाया गया है so that it becomes a dwelling place of God? कि वो परमेश्वर का मंडलाने का स्थान बने, Or the stones are rolling away, या पत्थर एक यहाँ वहां लुढ़क रहे हैं, not staying in the same place? वही एक जगह नहीं रह रहा, They are not joining together. वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ They are रहा, not knitted together. वो एक दूसरे के साथ नहीं God puts कार्य one कर रहा। stone. परमेश्वर ने एक पत्थर को रखा, When he puts the other stone, जब वो दूसरे पत्थर को रखता है, this stone says, "No, I will not accept." वो पत्थर कहता है कि मैं इस पत्थर के साथ बगल में Put नहीं him down रहूंगा, first. I will be on his top. उस पत्थर को तुम नीचे रखो, मैं उस पत्थर के ऊपर आना चाहता हूँ। Is it our attitude? क्या ऐसा हमारा स्वभाव है?
We need to change. हमें ये बदलना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes it will press you. और कुछ समय आपको वो दबाए रखेगा, Sometimes it will quiz you. कई बार आपको वो दबोचेगा। Don't worry. चिंता ना He कीजिए, will set you right. वो आपको ठीक You करेगा, will be comfortable. आप वहां पर सही की रहेंगे। That is his job. वो उसका कार्य He है, will join everything. वो हर एक को सही The रीति से moment जोड़ेगा। something is kept on your top, जिस समय आपके ऊपर कुछ रखा जाता है, maybe you have an headache, so say head weight, so God puts a bigger piece on the top. शायद आप बहुत ज्यादा घमंडी है तो आपके ऊपर और ज्यादा बोझ रख देगा। You say, no, 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 no. आप कहेंगे नहीं 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 प्रभु, Put him under my feet. I will उसे- take care of him. आप उसको मेरे चरणों के नीचे रखिए, मैं देख लूंगा उसे। We think that is spiritual maturity. हम लोग को लगता है कि ये आत्मिक उन्नति या बड़ी I've बात been है। in the church for so many years, I know it. मैं कलीसिया में बहुत सालों से और मैं जानता हूँ, More you grow, जितना आप बढ़ते more हैं you become matured. और उतना आप बड़े होते You will हैं not ask this place. और इस जगह को नहीं The खोजेंगे maturity will reveal. और आपके अंदर जो बढ़ोतरी दिखी जाएगी, Then you will say that I want to be near the doorstep. और आप कहेंगे कि मुझे कलीसिया के द्वार To के पास serve खड़े होना है, everyone. कि हर एक की मदद If करनी है। everyone has that attitude यदि हर एक के पास ये स्वभाव to है accommodate each and every one, कि हम हर एक को अपने लिए एक दूसरे की मदद करने की, this side I am very comfortable, मैं इस जगह पर बहुत this सही side I am हूँ, very comfortable, उस जगह पर भी मैं बहुत ज्यादा, top, bottom, everywhere, हर जगह पर ऊंचे नीचे हर एक I have स्थानों a good पर relationship. मुझे एक अच्छे रिश्ते संगति है It's दूसरों easy के, for God to finish the church, और ये परमेश्वर के लिए आसान है कलीसिया में finish कार्य the करने के लिए, construction. और वो उन कार्यों को पूरा करने So के लिए, that immediately he wants to dwell in that place. और वो तुरंत उस जगह पर उस स्थान पर मंडलाने लगता है। Allow God to build you with others. और अनुमति दीजिए परमेश्वर को वो आपको दूसरों के साथ Don't जोड़कर isolate बनाए। yourself. अपने आप को अकेला ना कीजिए। Amen. आमीन। Next, Paul is saying, और अगला कार्य जो पौलुस कहता है, Ephesians 4:12. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के Every 12वें आयत में, individual Christian must be committed to building up each other. हर एक अकेला व्यक्ति जो मसीह में अपने आप को बनाए रखता है, Amen. I need to edify, dear brother. मुझे अपने मित्र को आकर योग्य ठहराना है। How to edify? कैसे हम उसे योग्य How to ठहराएं, help one another? कैसे एक दूसरे की सहायता करें। We need to encourage one another. हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है। Many of us, we discourage people. हम में से कई दूसरों को निराश कर देते हैं। Brother, why you are not coming? भाई क्यों नहीं आ रहे यार? Why if your family visited only few times? क्यों आपका परिवार कलीसिया में थोड़ी बार ही आया? I can't come to your church, pastor. मैं आपके कलीसिया नहीं आ सकता Some of पासवान। them have a big mouth. कुछ लोगों का मुंह बहुत बड़ा है। They discourage me. मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने निराश कर दिया। Discourage and they encourage. और जो उत्साहित करने वाला और निराश करने Both वाला, the terms ends with courage. और दोनों आकर उत्साहितता पे खत्म होता है। You take courage to discourage. और आप उत्साहित होते हैं कि दूसरों को निराश करने के Is that लिए, right? You क्या- don't care to speak out. और आप नहीं चिंता करते कि आप क्या बोल रहे हैं। What kind of a dress that you are wearing? ये क्या कपड़ा पहन कर आ गए? Suppose if they are ill-tempered, if they slap you, यदि वो क्रोध आने वाले या आपको थप्पड़ अगर लगा दें, you don't care. You take courage to say that. आपको आकर उत्साहित होना पड़ता है कि उनको You ये बात take कहें। Courage to discourage. आप आकर अपने आप को उत्साहित करते हैं कि उनको निराश करें। How many of you take courage to encourage? हम लोग कितने लोग आकर कोशिश करते हैं दूसरों को निराश करने के लिए? Amen. You take courage हम लोगों को आकर उसमें उत्साहितता आती है to encourage somebody. दूसरों को निराश करने में। Hallelujah. We
think about our family, our friends. हम अपने मित्र परिवार के बारे में सोचते हैं, We encourage each other. And हम उन लोगों को तो उत्साहित करते ही हैं। evangelism leads to spiritual birth. और उपदेश सुनाना आकर जो उत्साहितता की ओर ले जाता है, Edification results in spiritual growth. और आकर दूसरों को उत्साहित करना आकर उनको योग्य ठहराता How do है। you edify? कैसे आप उन्हें आकर योग्य ठहराते The हैं? first step is to encourage one another. कि पहला कार्य उनको उत्साहित करे। Amen. So you examine your track record in the church. और अपने आप को आप परख कर देखिए, कलीसिया में इतने दिन आप कैसे रहें। Recollect your conversation. अपनी बातों को सोचिए दूसरों से जो आपने की हैं, Recollect your statements made in the church. और याद करिए उन बातों को जो आपने कलीसिया में कहा। Was it discouraging someone या- or encouraging? या किसी को वो निराश करता है या कुछ लोगों को उत्साहित करता है। So, when you come to the church, जब आप कलीसिया में आते हैं, pray. प्रार्थना कीजिए। I should always encourage someone. मैं हमेशा दूसरों को उत्साहित कर सकूं। Amen. आमीन। That's how we built the church. और इसी प्रकार से हम If कलीसिया को everyone बनाते हैं। encourages one another, यदि हम हर एक आकर एक दूसरे को उत्साहित करने that वाले बन becomes a जाए, dwelling place of God. वो परमेश्वर के मंडलाने का स्थान बनता है। The church is, even our church has to learn something. हमारी कलीसिया में कई बातों को सीखना है। Every time singing, हर बार हम गीत गाते हैं, worshiping, आराधना करते हैं, we say, oh, that's what God wanted. और हम कहते हैं कि हाँ यही परमेश्वर चाहते Today, हैं। the purpose of this service is fulfilled. और आज परमेश्वर की योजना मकसद पूरी होती है Go in peace. कि हम शांति से जाएं। But God must be wondering, परमेश्वर सोच रहा है ये is it a club? क्या ये आकर कोई क्लब है It's an auditorium? या कोई लोगों की संगति का स्थान Place of है entertainment? या एक दूसरे को रोमांचित See, everyone करने is के लिए entertained हर कोई आकर रोमांचित हुआ except me. मेरे अलावा। I am grieved. मैं आकर दुखी हुआ So my purpose is not fulfilled. क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पूरा नहीं So हुआ। sometimes, we come to Sundays to grieve the Holy Spirit and go. और कई बार हम लोग इतवार को इसलिए आते हैं कि पवित्र आत्मा को दुखित कर कर जाए। So now onwards, लेकिन आज के बाद we'll pray to God. परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, Remove the spirit of discouragement. मेरे अंदर दूसरों को निराश करने वाली Bless me आत्मा with को the हटा, spirit of encouragement. मुझे आशीषित कर उस आत्मा से जो दूसरों को उत्साहित So कर the church सके, will become the dwelling place. और कलीसिया आकर परमेश्वर के मंडलाने का स्थान Loving Heavenly बने। Father, we ask your blessing upon each and every believer. हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, तेरी आशीषों को हर एक विश्वासियों पर हम चाहते हैं। God, you build the church upon our confession that you are the Lord, you are the Son of God. और परमेश्वर आपने उस कलीसिया को हम पर स्थापित की है कि आप परमेश्वर के पुत्र Thank हैं। you for the work of the Holy Ghost in our lives. और धन्यवाद पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवनों में। Help us, Lord, सहायता कीजिए प्रभु to love everyone. कि हम हर एक से प्रेम करें, Build our co-believers. कि हम अपने सहयोगी विश्वासियों को उत्साहित करें। Help us to encourage every one of us. सहायता कीजिए कि हम उन सभी को उत्साहित कर Jesus' सके। name we pray. यीशु मसीह के नाम Love से of the प्रार्थना Father. कर, पिता का प्रेम, Grace of our Lord Jesus. यीशु मसीह की करुणा Fellowship of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा की Abide with us forever सहभागिता and ever. हमारे साथ नियंत्रण बनी रहे। Amen. God bless you all. आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित कर सके। जय मसीह की।